Welcome students in our today's class. Today we are going to start a new chapter from Hornbill book. The chapter is Landscape of the Soul. Landscape of the Soul. Here landscape means a scenery and landscape of the soul means this soul is of a painter. The painter who made this landscape, so he said that the landscape of the soul, this landscape belongs to this soul and this soul belongs to this painter. This is by Natalie Trowery. Natalie, through this story, she wants to give you a picture and comparison between the painting of Chinese painters and the European or modern painting. What is the conceptual difference between those paintings of Chinese painter and modern painting? So first of all, one thing I want to clear, this chapter is little difficult, but I tried my best to give you the points so that you easily understood what is going on in the chapter, what the chapter is about. So first thing is, this chapter is comprises into two parts. In the chapter there is two story. First story would deals with the landscape of the soul. In this chapter, we learn about the Chinese painter, Chinese paints, Chinese paintings, and side by side there is a comparison between the Chinese painter, between the Chinese painting and the European and modern painting. And the second part of this story deals with the art brut. Art brut is a art which is adopted by those person who haven't any professional degree, any professional certificate for the drawing, for the painting. So that type of people belong this community, belong this section of the art brut. The people who are not trained, who are untrained, those people called as the art brut. So the second part of the story deals you or gives you the story of the art brut, and so in the first portion, that is landscape of the soul, जो कि आपका landscape of the soul है, जो soul है that is belongs to a painter, कि painter बताना चाहता है कि actually ये जो landscape मैंने बनाया है, this is inside the landscape I am also living. ये मैं सिर्फ मेरी एक painting नहीं है. जो चाइनीज पेंटर्स होते थे एक्चुअली जिनका कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग होता था वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता था. वो सिर्फ पेंटिंग नहीं करते थे, अपनी सोल, अपने स्पिरिट को उसमें डालते थे. तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी रीड अबाउट द एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग्स. एज एथिक्स मीन्स बिलीव्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग डूइंग्स, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And spirituality, spirit, their longings toward the pain, their longing towards the painting, वो कैसा उनका परसेप्शन होता था ड्राइंग और आर्ट को लेकर के, ये सारी चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. And in the second part, as I already said you, in the second part we deal with the art brut. Art brut means the kind of art which is made by those people who are untrained. So this story comes under an article. Actually this is the article, Getting Inside Outsider Art. In the book, in the story, one article is given, Getting Inside Outsider Art, and this article is published in Hindustan Times in 2005 by Brinda Suri. Brinda Suri has given an article on the name of Getting Inside Outsider Art in Hindustan Times in 2005. In this article, she explained about those artists who are not professional artists, but they have the insightfulness of drawing and painting. So this much about the chapter, and then we go. Then in the next, I'll tell you what is else in the story. Now, this story begins with the painter Wu Daozi. Wu Daozi belongs to the 8th century in China, and he has painted a landscape on the demand of the emperor Xuanzong. So, Wu Daozi, who belongs to the 8th century in China, painted his last painting landscape on the demand of the emperor Xuanzong, as he demanded to decorate his palace wall.
and this landscape is the last painting of Wu Daoji, as after this painting he never seen in China anywhere. On that day when he was demanded to paint the painting by the emperor, so he painted his painting and it was demanded by the emperor, so he want only the emperor could see. वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो उनकी पेंटिंग बनी हुई है लैंडस्केप, जैसा कि एम्परर ने डिमांड किया था उसको बनाने के लिए, तो एम्परर ही उस पेंटिंग को सबसे पहले देखे, तो उन्होंने अपनी पेंटिंग को ही हाइड हिज पेंटिंग बिहाइंड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे अपनी पेंटिंग को छुपा दिया था. And when the emperor saw his painting, emperor admired his painting. उनकी पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की. As in the landscape there was a mountain, waterfalls, birds on flight, men and women are living under the foothills, and there was a beautiful cave. So when emperor admired his painting, at last Wu Daozi asked to emperor, you know emperor, there in the cave which is seen in the landscape, there is a cave. In that cave a spirit is living. And then emperor asked where it is living, whose spirit is living, किसकी spirit है उसके अंदर, कौन वहाँ पे रहता है. तो emperor के reply में Wu Daozi ने he just clapped his hand 3 times. The door of the cave opened and he entered into the cave. And as he entered into the cave, जैसे ही वो पेंटर Wu Daozi उस केव के अंदर, उस लैंडस्केप में जो केव बना था उस केव के अंदर जैसे ही वो एंटर करते हैं और उस केव का डोर उनके सिर्फ 3 टाइम क्लैपिंग से ओपन हो जाता है, और जैसे वो उसके अंदर एंटर होते हैं डोर क्लोज होता है केव का, और वापस से फिर Wu Daozi कभी भी नहीं दिखाई देते हैं. वो जैसे ही लैंडस्केप की केव के अंदर एंटर हो जाते हैं, Wu Daozi के साथ साथ वो पेंटिंग भी वहां से वैनिश हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है. और जो आपके एम्परर होते हैं, ही इज ओनली ही वाज इन वेरी शॉक्ड कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया ऐसा कि पेंटिंग और पेंटर दोनों ही गायब हो गए. तो दिस इज द लास्ट पेंटिंग, लैंडस्केप ऑफ द सोल टू द Wu Daozi. आफ्टर दिस पेंटिंग ही नेवर सीन इन द वर्ल्ड. Now these types of stories of painter like Wu Daozi is easily we found in China's classical education and in education and in books of Confucius and Zhuangzi. So the Chinese classical education is full of these types of stories. Many of the painter has painted their painting in which some this type of happenings happen कि वो कुछ सोचते हैं वो वैसा हो जाता है, जैसा वो इमेजिन करते हैं उस तरीके की एक्टिविटी उनके पेंटिंग में होने लगती है. तो इस तरीके की स्टोरी जो है वो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में आपको बहुत मिलेंगी. और इसी के सीक्वेंस में द राइटर हैज गिवन अनदर स्टोरी ऑफ अ पेंटर हु वुड नॉट पेंट अ ड्रैगन्स आई. जो एक पेंटर था उसका बिलीफ था कि मैं इस ड्रैगन की आईज को नहीं बनाऊंगा अपनी पेंटिंग में, कि इफ आई मेक द आईज, इफ आई ड्रॉ द आईज इन ड्रैगन, अगर मैं ड्रैगन की आईज को पेंटिंग में बना देता हूँ तो ये ड्रैगन फ्लाई कर जाएगा. इस डर से वो पेंटर का बिलीफ था और इस डर से वो जो है ड्रैगन की आईज को ड्रॉ नहीं करता है, बट फोर्सफुली बाय द डिमांड ऑफ द पीपल कि जस्ट ड्रॉ द आईज. वो जैसे ही आईज बनाता है ड्रैगन की, वो ड्रैगन उसकी पेंटिंग से फ्लाई कर जाता है. तो इस टाइप की स्टोरीज लाइक द Wu Daozi एंड दिस ड्रैगन स्टोरी, इस तरीके की स्टोरी आपको चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन में, कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी के बुक्स में आपको बहुत मिलेगी चाइना में. तो आफ्टर दिस द राइटर deals the another story where she differentiate between the Chinese painting and the European or the Western painting. So from here she has given one another story of a European painter. That story belongs to the 15th century and this happens in the city Utrecht in Belgium. ये एक बेल्जियम की स्टोरी है, वहाँ पे एक पेंटर की स्टोरी को उन्होंने डील किया हुआ है. एंड दिस पेंटिंग गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज पेंटिंग एंड वेस्टर्न पेंटिंग. So in another story the author gives you the example of a European art and a Western art. In that story there is a master blacksmith, Quentin Mix, who fell in love with a painter's daughter. And master blacksmith is well known, he know this very well, कि the painter didn't accept him as his son-in-law.
तो उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एज वो जो पर्सन था वो ब्लैक स्मिथ था और जो पेंटर थे ही इज़ अ रिनाउंड पेंटर, तो वो उसको अपना सन इन लॉ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि वो एक पेंटर नहीं होता। Then one day the master blacksmith entered into his studio. वो उनका जो पेंटिंग का स्टूडियो था उसमें वो एंटर कर जाते हैं and he saw that कि that painter ready his latest panel. उन्होंने अपना एक लेटेस्ट पैनल बिल्कुल रेडी करके रखा था उसे पेंटिंग करने के लिए। And on that latest panel, the blacksmith draw fly. blacksmith ने उसे क्या किया, एक फ्लाई बना दिया। And after drawing that fly, he went away from there. वो वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद जो आपका पेंटर होता है वो स्टूडियो में एंटर करता है and he saw on the panel, जो पैनल वो रेडी करके गया था पेंटिंग के लिए, उसने देखा कि there was a fly on that panel. Painter came and found a fly, so he tried to swat it. स्वैट इट मीन्स काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फ्लाई को पकड़ते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो उस लेटेस्ट पैनल पे फ्लाई का जो इमेज बना था, जो ड्राइंग हुई थी, जो पेंटिंग हुई थी, दैट फ्लाई लुक्स सो रियल, वो बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी कि इवन आपके पेंटर ने उसको फ्लाई समझा और उसको मारने की कोशिश की, उसको वहाँ से पैनल से हटाने की कोशिश की। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये रियल फ्लाई नहीं है, ये एक ड्राइंग है, एक पेंटिंग है। तो व्हेन ही अंडरस्टूड कि ये फ्लाई जो है वो पेंटिंग की हुई है, ये ड्राइंग है, तो उन्होंने ही इंक्वायर्ड कि किसने ये बनाया है ये फ्लाई। एंड व्हेन ही गेट टू नो कि दिस फ्लाई इज मेड बाय द ब्लैक स्मिथ, सो ऑन दैट डे ही एक्सेप्टेड द ब्लैक स्मिथ एज हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज मीन्स एज हिज ट्रेनी, उनको एज अ ट्रेनी अपने अंडर में ले लिया। एंड ब्लैक स्मिथ का जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई and he also accepted blacksmith as his son-in-law. So blacksmith married with the painter's daughter. तो यहाँ पे ये दिखाया कि देखिए इस पेंटर में जो वेस्टर्न पेंटिंग होती थी उसमें बहुत ही बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज दिखा दिया। वो फ्लाई जो ड्रॉ की थी वो फ्लाई आपकी बिल्कुल रियल इमेज दिखा रही थी पेंटर को। Let's come to see the difference between Chinese painting and European, what we say the Western painting. As your author has given the different stories, the 3 stories she has given. First, Wu Daozi's story, the landscape of the soul, and second, the dragon story, and third one is from the Western painting, the fly painting, which the blacksmith had drawn on the latest panel of the painter. So just we go through with the what kind of difference she wants to give you. In the Chinese painting, Chinese painter does not mean to reproduce actual view. Actually जो Chinese painters होते थे, जो Chinese पेंटिंग बनाई जाती थी, वो आपको बिल्कुल एक्चुअल व्यू नहीं दिखाना चाहते थे। वो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि हाँ मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया है, मैंने कुछ बना दिया है। अब इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे डिपिक्ट करते हैं, आप उसको कैसे समझते हैं और उस पूरे सीन में, पूरे इमेज में, पूरी पेंटिंग में आप क्या क्या चीज़ें देखने चाहते हैं। तो दे डोंट गिव यू अ सिंगल ओवरव्यू, वो आपको सिंगल पॉइंट नहीं देते देखने के लिए। आप अपने तरीके से जैसे चाहो वो पूरी पेंटिंग में, पूरे इमेजेस में आप घूम सकते हो। घूम सकते हो मीन्स का यू कैन टेक योर पर्सपेक्टिव टू सी दैट पेंटिंग और टू टेक आउट द व्यू। आप अपने तरीके से उस पूरे पेंटिंग को, पूरे इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको जो चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं आप वो देख सकते हो। जिस तरीके से आपको लगता है कि आप उस पेंटिंग को, आपको ऐसे डिपिक्ट करना चाहिए, आपको उसको ऐसे डिस्क्राइब करना चाहिए, आपको उसको वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप उसको वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो आपको एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं देते कि मैंने ये बना दिया है अब आपको वही देखना है। ऐसा चाइनीज़ पेंटर्स नहीं करते थे। And they actually want to see the painting with your mind also. वो सिर्फ आपका फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं चाहते थे कि आप अपनी आंखों से देखिए और जो सामने लिखा है आपने उसी को देख लिया, एक्चुअल व्यू ले लिया। नहीं, वो आपका फिजिकल पार्टिसिपेशन ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो आपके फिजिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ वो आपके माइंड का पार्टिसिपेशन चाहते थे। वो आपके अपना थिंकिंग जो है, आप किस तरीके से उस पेंटिंग में अपनी व्यूज़ को डालते हैं, आप उसको कैसा लेते हैं, आपको वो क्या समझ में आता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज जो पेंटर्स होते थे वो पेंटिंग बनाते थे। इंस्टेड दैट जो वेस्टर्न पेंटिंग्स होती थी वो बिल्कुल आपको एक्चुअल व्यू प्रेजेंट करती थी कि जो चीज़ें मैंने यहाँ बना दी एक
फिगरेटिव पेंटिंग होती थी। जो फिगर उन्होंने दे दिया है, जो फिगर उन्होंने बना दिया है, आप उसको बिल्कुल वैसा एक्चुअल देख लीजिए कि हाँ मैंने फ्लाई बनाई थी तो वो फ्लाई को आपको बिल्कुल एक्चुअल फ्लाई दिख रही थी। उसमें आपने कुछ अपना इनपुट डालने की कोशिश नहीं की, जो आपको दिखाया गया आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। बेसिकली दे आर बोरोइंग योर आइज। वो उनको आपके माइंड से मतलब नहीं था, उनको आपके फीलिंग से मतलब नहीं था, उनको आपकी थिंकिंग से मतलब नहीं था। वो सिर्फ आपकी आंखों से जो चीज़ें आपने कैप्चर की, जो चीज़ें आपने देखी, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते थे कि हम एक ऐसा फिगर बना दें, हम एक ऐसी ड्राइंग, एक ऐसी पेंटिंग बना दें कि जो भी चीज़ें एक्चुअल हैं वो आपको दिखाई दे और आप उसको वही समझे जो पेंटर उस पेंटिंग के थ्रू समझाना चाहता है। जबकि चाइनीज़ पेंटिंग में जो पेंटर होता था उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेंटिंग बनाई है वो आपको जब पेंटर समझाता था तो ही आप समझ सकते थे। अदरवाइज आप उस पेंटिंग को देख करके अपने तरीके से जैसे मर्जी चाहे उसको डिस्क्राइब कर सकते थे। एंड सेकेंड थिंग, जो आपका वेस्टर्न पेंटिंग होती थी वो आपको एक सिंगल स्पेसिफिक एंगल प्रोवाइड करती थी कि आप इसी एंगल से इस पेंटिंग को देखिए, आपको दूसरे तरीके से या आप अपने तरीके से उसको ज़्यादा डिपिक्ट करने की नहीं, जो चीज़ें हमने प्रेजेंट कर दी है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती थी वो कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग होती थी और जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो जो है आपकी रियलिस्टिक पेंटिंग होती है। ओके, इन चाइनीज़ पेंटिंग as they express conceptual point of view, so this conceptual expression they are taking as a सेंसुई, इसको वो सेंसुई बोलते हैं और सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन एंड वाटर। सेंसुई जो है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन एंड वाटर एंड एक्चुअली ये जो माउंटेन एंड वाटर है वो उसको इंडिकेट करते हैं। माउंटेन इज एज यांग एनर्जी, माउंटेन को यांग एनर्जी करते हैं, सिंबलाइज करते हैं और जो वाटर होता है वाटर को वो ईन एनर्जी सिंबलाइज करते हैं। यांग एनर्जी इज अ सिंबल ऑफ मैस्कुलिन पावर, ये मैस्कुलिन पावर का सिंबल होता है। एज वी नो कि जो मैस्कुलिन पावर होती है, जो मैस्कुलिन होते हैं दे आर मोर एक्टिव, दे आर मोर स्टेबल, दे आर वार्म एंड दिस यांग एनर्जी वर्टिकली मूव टुवर्ड्स द हेवन, ये हेवन की तरफ जाती है। और ये जो आपकी ईन एनर्जी है विच इज रिलेटेड टू द वाटर, तो उसमें सारी वाटर की क्वालिटी होती है। ईन एनर्जी इज गिवन एज अ फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी होती है और जो फेमिनिन एनर्जी होती है दैट इज कूल, मॉइस्ट, तो वो और उसको बताते हैं कि चाइनीज जो ईन एनर्जी होती है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, इट इज़ मूविंग हॉरिजेंटली टुवर्ड्स द अर्थ और वो अर्थ की तरफ आती है। तो जो इनकी पेंटिंग होती है उसमें लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन, सेंसुई का डिस्क्रिप्शन मीन्स माउंटेन और वाटर का डिस्क्रिप्शन जनरली देखा जाता है। और ये जब भी वो लैंडस्केप बनाते हैं, माउंटेन और वाटर को दिखाते हैं, जब भी वो सेंसुई पैटर्न पे पेंटिंग बनाते हैं तो इस पैटर्न में जो माउंटेन और वाटर का बीच का एक स्पेस होता है उस स्पेस को वो ब्लैंक रखते हैं या वाइट रखते हैं, क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि दिस स्पेस इज फॉर द वॉइड, इसको वो वॉइड बोलते हैं एंड दिस वॉइड प्लेस इज फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन दिस माउंटेन एंड वाटर, इंट्रैक्शन बिटवीन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बिटवीन द यांग एंड ईन। तो इस एनर्जी का जो ये वॉइड प्लेस है, जो इंट्रैक्शन प्लेस है, जो कम्युनिकेशन प्लेस है, वो उसको अपनी पेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस वजह से जितनी भी चाइनीज़ पेंटिंग होती है अगर वो सेंसुई पैटर्न पे काम करते हैं, सेंसुई पैटर्न पे अपनी पेंटिंग बनाते हैं, तो वो जो मिड का स्पेस होता है लैंडस्केप का उसको ब्लैंक रखते हैं या उसकी वाइट पेंटिंग करते हैं, वाइट कलर यूज़ करते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि दिस इज द वाइट प्लेस एंड हियर इज अ communication between the masculine and feminine, between the yang and yin, between the mountain and water। तो इस एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग में and so this void is a communication between these two poles, between the yang and yin energy. This is the main concept of Chinese painting, which basically based on the Sansui pattern. Getting inside outsider art. So here the part 2 started, part 1 is completed, which is given for the comparison between the painting of the Chinese and the Western. So this second part, getting inside outsider art, which belongs to the art brut. As I told you, art brut is the art of the
untrained visionaries, untrained people who they have no formal trainings. They have inborn talent of artist, and they have artistic insight. So they can also do the same thing. They can also paint or draw the images. It doesn't mean that if they have no formal degree, no professional degree, so they don't sketch or they don't use brush. They can also, and that type of art is called the art brute, that people who are making art or drawing or painting without having any professional degree, without having any training, so that people's art or painting comes under the art brute. So this under the art brute we have a best example in India. That is the rock garden of Chandigarh, which is made by Nek Chand. Nek Chand, he is a government employee, and when he has a spare time, when he has a जब भी उनको कोई खाली टाइम मिलता था अपने काम से, अपनी जॉब से, तो वो अपना जो टाइम होता था उनमें जंगल का एक थोड़ा सा स्पेस था, जंगल का वो प्लेस, उसको साफ सफाई करते थे, क्लीन अप करते थे। और क्लीन अप करने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक गार्डन बनाया, और उस गार्डन की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस गार्डन में जितनी भी ब्यूटिफिकेशन हुआ है, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, जितना भी उसको अच्छी तरीके से दिखाया गया है, वो सारी चीज़ों में ऐसे मटेरियल का यूज़ हुआ है जो मटेरियल रिसाइकिल हो सकते थे, जो वेस्टेज थे, वेस्टेज मटेरियल को रिसाइकिल करके यूज़ किया है। एंड दिस इज नोन एज अ रॉक गार्डन। तो वहाँ पे पूरा वो जो गार्डन है दैट इज स्कल्प्टेड विथ स्टोन, बैंगल्स, रिसाइकल मटेरियल्स ऑफ फैक्ट्री एज वेल एज हाउस। जितने भी रिसाइकल मटेरियल आपके घरों से निकलते हैं या फैक्ट्री से निकलते हैं, उस रिसाइकल मटेरियल को यूज़ करके उन्होंने उस गार्डन को डेकोरेट किया है बहुत अच्छे से। वहाँ स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, स्टैच्यूज़ बनाए हुए हैं, वो स्कल्पचर, वो स्टैच्यू स्टोन्स के हैं, और वो भी स्टोन्स वो ऐसे हैं जो कि यूज़ नहीं हो सकता था उनका, और उन्होंने उसको यूज़ करके बहुत अच्छे से वहाँ पे रॉक गार्डन चंडीगढ़ में क्रिएट किया, और इसलिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। एंड ही इज़ अ वेल नोन फिगर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने इस रॉक गार्डन के नेम से। एंड देन उन्होंने जो इसकी स्टार्टिंग की थी, वो जो लिटिल प्लेस ऑफ जंगल था उसको साफ सफाई किया उन्होंने वहाँ पे उसकी स्टार्टिंग करी उस गार्डन को डेकोरेट करने का। और उस गार्डन को उनको जब भी उनके लिए कोई रिवॉर्ड की बात की जाती है तो ही सेड दैट कि मेरे लिए जो सबसे बेस्ट रिवॉर्ड ये है कि व्हेन आई सॉ कि पीपल आर मूविंग इन दैट गार्डन, दे आर एंजॉइंग, तो दैट इज़ बेस्ट अवार्ड फॉर मी। जब भी मैं देखता हूँ कि वो रॉक गार्डन में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस गार्डन को, वहाँ पे कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को देख करके मुझे जो हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है, दैट इज़ द बेस्ट reward for me for making this rock garden. Thank you. I hope you well understood the chapter Landscape of the Soul. This is quite difficult to understand, but I hope that the points, the explanation which I given you, from that you can well understood. थोड़ा सा आप चीज़ों को एक बार अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा तो पॉइंट टू पॉइंट, डॉट्स टू डॉट्स आपके रिलेट होंगे और आपको स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि थ्रू आउट द चैप्टर आपके ऑथर ने, आपके राइटर ने, नैथली ने इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट ही डील्स अबाउट द पेंटिंग आर्ट ऑफ द ट्रेंड पीपल, जो कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए चाइनीज़ और वेस्टर्न पेंटिंग की, दोनों में डिफरेंस बताया कि चाइनीज़ और वेस्टर्न पेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देन उन्होंने एक सेकेंड टाइप ऑफ आर्ट आपको बताया जो कि पार्ट सेकेंड को डील किया, विच इज़ आर्टिकल गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। इसमें उन्होंने आपको एक अनट्रेंड लोगों की आर्ट को दिखाया और एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया के स्टोन गार्डन ऑफ चंडीगढ़ का दिया है। तो इसके थ्रू उन्होंने अपना बेस्ट तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट किया है कि कितने वैरायटी ऑफ आर्ट्स ड्राइंग पेंटिंग्स हैं।